Hello, my name is Nyay Yasir Shaukat, and today I'm going to talk about mathematical concept that is continuity. So I'm going to talk about continuity. Continuity has a huge applications in mathematics, as you know about differentiation and integration. So let's begin our topic with some examples, and then we will go on to the conceptual clarity. So let's begin and let's see what continuity will bring us out. So as I begin this topic of about continuity, I'm going to tell you a simple two examples. First example is about f of x is equal to 1 x less or equal to 0, and 2 if x is greater than 0. Now let's make the graph of this. A simple graph will make a more impact in your mind. So if I make the graph here, this is y-axis, this is x-axis. For 1 here, see, this is the line that is makes. So now here it is 2 and this is the line. You're getting this? आपको समझ आ रही है? तो ये एक simple graph है इसका. Now let's understand this graph. What does this graph speak? So it graph says that this is a function f of x is equal to 1 for all values of x less or equal to 1. Now what this signifies? This signifies f of x is equal to 2. But for what values? For the values of x that are greater than 0. So these are the two values. You get it? So now see this graph, you will understand what I am trying to say. Now after that we will try another example and make sure about make clear the definition. Okay, let's suppose. So when you are seeing this, do you get any idea about the limits? Just see the limits. When this is our left hand side and this is our right hand side, you see it clearly. This is right hand side, this is left hand side, and when we write limit x tends to 0 negative, that means it is left hand side of this function f of x, which is equal to 1. And if limit x tends to 0 positive, that means right hand side, which is f of x is equal to 2. But at f of 0, it is equal to 1. So you got the three things here. You got a left hand limit, you got a right hand limit, you got the value exactly at 0. So when you will check these, you will see that left hand limit, this one, left hand limit and this coincides with each other. इनका वैल्यू दोनों का सेम आता है. इस लिमिट का और इस लिमिट का दोनों का एक ही वैल्यू आ रहा है. लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द और लिमिट 0 पर सेम आ रहा है, मगर जो राइट हैंड लिमिट है उसका वैल्यू 2 आ रहा है. यू गेट इट? तो इससे क्या हो रहा है? इससे एक जंप क्रिएट हो रहा है. एक जंप, ग्राफ में एक जंप क्रिएट हो रहा है. सो अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में ले ले, मैं एक पेन को ले लेता हूं यहां पर और एक लाइन खींच देता हूं, मगर मुझे यहां पर रुकना पड़ेगा, अपना पेन हटाना पड़ेगा और यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा. और दिस गिव्स अस एन आइडिया दैट कंटिन्यूटी को एक ब्रेक नहीं मिलनी चाहिए, मेरा पेन उठना नहीं चाहिए. सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द कंटिन्यूटी. अ बेसिक आइडिया जो एक सिंपल किसी को भी समझ आएगा. तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ? एग्जैक्टली वैल्यू के साथ.
और जो राइट हैंड लिमिट है वो डिफरेंट है। तो अब हम दूसरी एग्जांपल देखेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स रब इट एंड दिस सी। ओके, तो कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, this is our function second, that is f of x is equal to 1 for x not equal to 0 and 2 for x is equal to 0. Now we will plot this graph. Okay, now when we plot this graph, this is y-axis, this is x-axis, and now when we plot this graph, this is 1 and this is how it is coming, and this is 2. Sorry, this is here this, and यहां पर क्या हो रहा है, एक गैप क्रिएट हो रही है, यहां पर एक होल क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? होल एक क्रिएट हो रहा है, जो इस ग्राफ का एक होल क्रिएट होता है। तो अगर हम देखेंगे यहां पर जो वैल्यू है दैट इज f of x is equal to 1, यहां पर देखेंगे ये है f of x is equal to 1 दोनों पे, बट यहां पर अगर देखेंगे तो इट्स अ डिफरेंट केस, यहां पर f of x is equal to 2, तो एक गैप क्रिएट हो रही है। नाउ लेट्स सी आवर जो एक सिंपल डेफिनेशन थी, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर आई हैव टू स्टॉप हियर, मुझे यहां पर रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर एक होल है, सो यहां से फिर से स्टार्ट करना। सो अकॉर्डिंग टू द बेसिक डेफिनेशन इट्स नॉट कंटिन्यूअस। नाउ लेट्स सी इट्स लिमिट्स। व्हाट वी विल सी? लिमिट्स। अगर हम इसके लिमिट्स चेक करेंगे, इसके लिमिट्स चेक करेंगे तो लिमिट क्या आता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव क्या हुआ? 0 नेगेटिव हुआ लेफ्ट हैंड साइड, ओके, ऑफ f of x which is equal to 1. Limit of x tends to 0 positive. The 0 positive means right hand side, that is f of x, that is also 1. But what is f of 0? F of 0 is 2. Are you getting? What is f of 0? F of 0 is 2. So what do you understand from this? This is the left hand side, this is the right hand side, and these are our limits. So when we are seeing these limits, previously इससे पहले भी हमने लिमिट्स को देखा, तो क्या अंडरस्टैंड किया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है इनमें। These both things are not continuous. ये कंटिन्यूअस नहीं है, ना ये कंटिन्यूअस है ना ये कंटिन्यूअस है, दोनों कंटिन्यूअस नहीं है। मगर हमें पता कैसे चल रहा है? मैथमेटिकली, मैथमेटिकली हमें पता चल रहा है बाय लिमिट्स। कैसे पता चल रहा है? लिमिट से। जब लिमिट राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो यहां पर 1 आता है, जब राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो 1 आता है, बट एग्जैक्टली यहां पर कुछ डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। तो दैट रिफ्लेक्ट्स, यही हमें बताता है कि आपकी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इट्स नॉट कंटिन्यूअस। तो आपको अब ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया कि हमें क्यों, अगर हम हर किसी फंक्शन का ग्राफ देखेंगे वो हमारे लिए मुश्किल होगा, इट विल बी वेरी हैक्टिक फॉर अस। सो फॉर मैथमेटिशियन दिस इज द वे दे चेक देयर लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका राइट हैंड लिमिट और उसका एग्जैक्ट वैल्यू, जब तीनों बराबर हो तभी वो कंटिन्यूअस है। तो अब हम पहुंचते हैं डेफिनेशन पे। सो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन सिंपली है, कोई भी फंक्शन अगर होगा, कोई भी फंक्शन होगा f जो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा और किसी सबसेट पे एक कंटिन्यूअस होगा, कोई फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन है वो जब कंटिन्यूअस होगा, जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। अगर हम कोई पॉइंट c लेंगे, को क्या लेंगे? कोई पॉइंट c लेंगे उस डोमेन में, उस फंक्शन के डोमेन में, अगर वो पॉइंट limit of x tends to this point c, f of x अगर ये f of c के बराबर आया तो हम बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। आपको समझ आ रही है बात? तो दिस इज द सिंपल केस सिनेरियो
कि हमें कैसे पता चलता है कि फंक्शन कैसी है, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है. दिस इज द बेसिक आइडिया. दिस इज द बेसिक आइडिया. अब हमें इस बेसिक आइडिया को कैसे समझे, तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है. अगर हम इसको इलाबोरेट करेंगे तो ये कंसेप्ट कैसा है, ये कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है. देखो कैसे. द फंक्शन लिमिट, वी आर टॉकिंग ए रियल वैल्यूड फंक्शन है. जब रियल वैल्यूड फंक्शन है उसके डोमेन में हम एक पॉइंट उठा रहे हैं और वो पॉइंट जो है वो है पॉइंट सी. जब हम वो पॉइंट सी है उसको अप्रोच कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा क्लोज, बहुत ही ज्यादा क्लोज. अगर हम पहली एग्जांपल लेंगे, यहां पर हमने जीरो लिया था. क्या लिया था? जीरो लिया था. जीरो हमने सी के बदले अगर हम जीरो यहां पर रिप्लेस करें, हम बहुत ही ज्यादा क्लोज हुए. क्लोज पॉइंट्स क्या थे? फॉर इंस्टेंस -0.01, ये क्लोज पॉइंट है. बट इस पे क्या वैल्यू आता है? इस पे आता है वैल्यू 1 बिकॉज x इज लेस देन 1. सिमिलरली 0.001 माइनस, सो सेम केस 1. अगर हम क्लोज जाएंगे अब 0.01 इससे x when x is greater than 0, तो वैल्यू आता है उस वक्त 2. अगर हम फिर से जाएंगे 0.0021 तो फिर से वैल्यू आएगा 2. Go, we have to approach very close. And closeness का मतलब है, closeness का मतलब है we have to approach both sides very close. Both sides का मतलब लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी. जैसे यहां पर जीरो है, जीरो एक सेंट्रल पॉइंट है. हम यहां से भी आ रहे हैं, यहां से जो पॉइंट है वो है -0.01, -0.001. को ये लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट्स है. अब राइट हैंड साइड के पॉइंट्स क्या है? 0.01, 0.001. These are the right hand side points. So I am approaching this side and similarly approaching to C. Approaching to C, I have to approach both sides. That means our left hand limit, right hand limit and the value at point C should all be equal. जब ये सारे इक्वल होंगे तो हमारी फंक्शन कंटिन्यूअस होगी. You get it? So this is something what I was trying to say. Now we are going to do one thing. We are going to generalize this concept. You know mathematics is all about क्या? Generalization. कि कैसे हम कोई चीज को सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं देखना है, पूरे डोमेन में देखना है. जब हम रियल वैल्यूड फंक्शन है तो हम रियल लाइन की बात कर रहे हैं. अगर हम इसमें अगर अब बोलेंगे हम कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये वाली फंक्शन कंटिन्यूअस है, साइन एक्स कंटिन्यूअस है, या सपोज कोई और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये तब हम बोलेंगे जब इसके हर कोई डोमेन में पॉइंट क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा. जैसे हमने एक पॉइंट के लिए निकाला था, पॉइंट सी के लिए निकाला था, उसी तरह हमें पूरे डोमेन की तरह पूरे डोमेन में निकालना है पॉइंट्स और उनको चेक करना है कि ये सब के सब कंटिन्यूअस है, सब के सब पे ये कंटिन्यूअस है. आपको समझ आ रही है बात? सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. सो व्हाट वी आर गोइंग टू से, इफ अगर सपोज अब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम? इट इज डिसकंटिन्यूअस. क्या बोलते हैं हम उसको? इट इज डिसकंटिन्यूअस. डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट. और क्या बोलते हैं? इट हैज अ डिसकंटिन्यूटी एट सम पॉइंट. आपको समझ आ रही है? या इसके पास कोई डिसकंटिन्यूटी है, या इसको हम बोलते हैं इट इज डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट. आपको समझ आ रहा है? तो दिस इज द बेसिक थिंग. डिसकंटिन्यूटी, नॉट कंटिन्यूअस मींस डिसकंटिन्यूअस. आपको समझ आ रहा है? सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. When is a function continuous? When is a function continuous? A function is continuous when it is continuous at every point. At every point. At every point in domain. In domain. This is main thing. At every point in domain, when a function is continuous, that function is called continuous function. So let's suppose
हमारी एक रियल लाइन है। नाउ हमने उसका एक सबसेट लिया ए बी क्लोज्ड ए बी। अब कोई फंक्शन जो होगी वो कब होगी कंटिन्यूअस, जब वो इनके सब पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होगा। तो हम बोलेंगे कि जो इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स, मगर लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव, राइट हैंड साइड वाला f ऑफ x किसके बराबर आना चाहिए, f ऑफ a। दिस शुड बी इक्वल टू दिस, तभी हम बोलेंगे ये कंटिन्यूअस है। और लिमिट x टेंड्स टू b पॉजिटिव, तब हम f ऑफ x, तब हम बोलेंगे ये f ऑफ b के बराबर है। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तब हम बोलेंगे ये फंक्शन इस डोमेन पे कंटिन्यूअस है। सो इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स। मगर एंड पॉइंट्स क्या होता है, दिस इज द लेफ्ट साइड, सॉरी, दिस इज द लेफ्ट साइड here, this is the left side of B, left side of the B, ये AB है, ये A है और ये B है, और इसके left side और इसका right side, they should be equal to f of A and f of B, then only. Now question comes कि if a set is singleton, that's simple, that's very simple. अगर कोई function के सिर्फ डोमेन में एक ही पॉइंट है, सिंगलटन, you know that a set has only one point. जब एक ही पॉइंट हो, that means it is continuous. Now we don't have to check these things because there is nothing, there is only one point. Done. That's nothing to see then. अब हम जो दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे about mod of x. Mod of x is one of the, mod of x से पहले हम देखेंगे एक फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल f of x is equal to 2x plus 3. इसको हम कैसे कंटिन्यूअस देखेंगे, एट x इज इक्वल टू 1, दिस द मेन पॉइंट। तो पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है, वी हैव टू सी इज इट डिफाइंड ऑन 1, is this function defined on 1? We know that we have read functions, so it's defined. Now let's come to second point. Now we have to check limit x tends to 1. F of x, what is it? It is 2 into 1. Wait a second, huh? So limit x tends to 1, 2x plus 3, and we can see that it is limit, it's 2 into 1 plus 3, that's 5. Similarly, now we will check f of 1, and that's also 5. As the both coincide, so this is continuous. It's continuous. So now coming to second example, that is about mod of x, which is a very important example. That is mod of x. F of x is equal to mod of x. And what does it mean? It means minus x for x is less than 0 and x is greater or equal to 0. Now we have to check limit x. Suppose we have a point C and this C is less than 0. We took as point C and this C is less than 0, and limit x tends to C, f of x, which is equal to minus of C. But let's take f of C, which is mod of C, which is again minus of C. As these both coincide, ये दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है, so it is continuous. So this is also continuous. Now let's suppose we'll see its graph. Its graph is simple. As you know, this is the graph of mod of x. And you can see, I will put here pen, I will not stop. It's not stopping. कहीं पर उठ नहीं रहा है. So that means it's continuous. This is mod of x का graph. So that is what we learned now in this chapter. हमने ये पढ़ा
कि कंटिन्यूटी क्या होता है, और हमने मैथमेटिकली ये देखा कि कंटिन्यूटी के लिए कि सिस्टमैटिक वे कैसे हम देख सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है. एज अ मैथमेटिशियन यू कांट डिड्यूस एवरी ग्राफ एंड देन सी कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं. So this systematic way, checking their right hand limit, checking their left hand limit, and checking their mean at a definite point कि इसका वैल्यू क्या है. अगर तीनों के तीनों वैल्यू सेम आ रहे, that means a function is continuous. And this is how we are going to deduce that continuity. And this is how we are going to further talk about differentiation, talk about integration, and all these concepts. This main concept will help us in differentiation, integration, and thank you for taking time and seeing my lecture. Have a nice day.